So we welcome His Holiness Jayadev Swami Maharaj by one time chanting Hare Krishna Mahamantra. तो एक बार हरे कृष्ण महामंत्र कह के महाराज का स्वागत Hare करेंगे। Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Maharaj is not just one of Prabhupada's devotees, but he is one of Prabhupada's first devotees. He joined at 26 Second Avenue in New York. He's my older godbrother. He's senior to all of us here. So he has given his life of 55 years in devotional service. He joined when he was 18 years old. महाराज श्रील प्रभुपाद के वरिष्ठतम शिष्यों में से एक हैं। पिछले 55 वर्षों से इस्कॉन में अपनी सेवाएं दे रहे हैं और मेरे सबसे वरिष्ठ गुरु भ्राताओं में से एक हैं। And especially Maharaj is very merciful upon Ujjain devotees. In the pretext of Ayurvedic treatment, he keeps coming here to treat our material disease. और महाराज विशेष रूप से उज्जैन के भक्तों के ऊपर बहुत कृपा करते हैं। आयुर्वेदिक चिकित्सा लेने के बहाने वे यहाँ आते हैं और हमें अपनी संगति प्रदान करते हैं। So without taking much time, we request His Holiness Jayadev Swami Maharaj to please enlighten us. After this schedule, His Holiness Bhakti Daita Adipurush Swami Maharaj will give his short speech. As today we are inaugurating the festival, so we are hearing a short speech from the devotees, and afterwards coming up sessions, we have 45-minute sessions by different devotees. So today, after His Holiness Bhakti Daita Adipurush Swami Maharaj, His Grace Basu Goswami will give that first session on Prabhupada Katha. तो इसके बाद महाराज कहेंगे, उसके बाद हम प्रार्थना करेंगे। श्री श्रीमद् भक्ति दयित आदि पुरुष महाराज से विश्व प्रभुपाद के बारे में कुछ बताएंगे। और जैसे कि हम जानते हैं आज हमारा पहला सत्र है, तो इसमें वासुघोष प्रभु इसके बाद अपना वक्तव्य रखेंगे। Om Gana-timirandasya Gyananjana Shalakaya Chakshurmilitam Jena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobhistam Sthapitam Jena Bhutale Swayam Rupa Kada Mahyam Dadhati Shapadantikam Pandehang Shri Guru Shri Jatapadakamalam Shri Gurun Vaishnavamscha Shri Rupam Shagrajatam Shahagana Raganatan Vitam Stam Sujivam Sadvaitam Savatutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padan Shahagana Lalita Sri Vishakhan Vitamscha He Krishna Kuruna Sindho Dina Bandho Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kamshana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sute Devi Pranamami Haripriye Vansha Gopatirupyascha Kripa Sindhopyevacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namah Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivashadi Gaur Bhaktivinoda Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Ram. I remember one time when Srila Prabhupada came to 26 Second Avenue after having been in Hawaii. मुझे स्मरण है एक बार श्रील प्रभुपाद 26 सेकंड एवेन्यू में हवाई से आए थे। He said that the local newspaper, the Honolulu Advertiser, had given a report that the Swami is a small man, but he has got a big message. तो वे उस समाचार पत्र के लेख का वर्णन कर रहे थे जहाँ पे लिखा गया था स्वामी एक छोटे व्यक्ति हैं किंतु इनके पास एक बड़ा संदेश है। And Srila Prabhupada liked that. और श्रील प्रभुपाद को ये बात बहुत पसंद आई थी। Because he had been given a crucial message to deliver.
और श्रील प्रभुपाद को ये बात बहुत पसंद आई क्योंकि उनके पास एक बहुत महत्वपूर्ण संदेश था जिसे वे हमें प्रदान करना चाहते थे। The message of Srimad Bhagavatam, the message of Sri Chaitanya Mahaprabhu. श्रीमद् भागवतम का संदेश, श्री चैतन्य महाप्रभु का संदेश। So Prabhupada was always grave and thoughtful. तो श्रील प्रभुपाद हमेशा बहुत ही गंभीर रहा करते थे And dedicated to pushing on with seemingly unlimited energy the work given to him by his Guru Maharaj. और ऐसा प्रतीत होता था मानो उनके पास असीमित शक्ति हो जो कि उनके गुरु महाराज ने उन्हें प्रदान की थी। I usually don't tell a lot of stories, but I'll tell one story. In Chaitanya Charitamrita it said, Kaviraj Goswami remarks that I'm just telling something about the pastimes of Chaitanya Mahaprabhu during his southern tour. But every place, every day, every moment, something was going on that was significant. तो चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं में सब कुछ चल रहा था। विशेष रूप से जब वे दक्षिण भारत गए थे तो वहाँ पे कई सारी लीला हुई, किंतु ऐसी भी कई लीलाएं थीं जो हर प्रतिक्षण वहाँ पे घटित हो रही थी। So with Srila Prabhupada also, there's unlimited तो इसी प्रकार से श्रील प्रभुपाद के साथ में भी कई सारी लीलाएं घटती रहती थी। unlimited significant activities. But I'll tell maybe one or two incidents. तो ऐसी असीम घटनाएं हैं जो हुई थी, किंतु उनमें से मैं एक चुनी हुई घटना यहाँ पे कहूँगा। We were on a walk in Vrindavan. हम वृंदावन में सैर पे थे। If I remember, we were walking sort of in the area of the Govindaji Mandir. अगर मुझे ठीक से स्मरण है तो हम गोविंद जी मंदिर के इलाके के पास से गुजर रहे थे। And as we were walking, we came across what would you say, a structure. The structure was a raised platform, like a stage, made of cement or stone, and a covering, and maybe this size. और सैर Like the करते size हुए of हम this stage. एक ऐसे स्थान पे आए जहाँ पे एक छोटा सा चबूतरा बना हुआ था, इस साइज का होगा। And there was some incense, and there was some music, and there was a small shrine there. और वहाँ पे भगवान का एक विग्रह था और वहाँ पे बहुत पवित्र स्थान था। कुछ धूप, वहाँ से धूप की खुशबू आ रही थी। So Srila Prabhupada got up he climbed the steps to see the shrine. और श्रील प्रभुपाद उस चबूतरे पे चढ़ गए And he saw that the deity was Durga Devi. और उन्होंने देखा कि वो विग्रह दुर्गा देवी का था। So Prabhupada offered full dandavats. श्रील प्रभुपाद ने पूरा दंडवत प्रणाम किया। And then he was sitting before Durga Devi, if I remember, on his hands and knees, sitting like on his knees before the deity. और वे दुर्गा देवी के सामने घुटनों पे हाथ रख के बैठ गए। And his eyes were moist. और उनकी आंखें नम हो चुकी थी। And Prabhupada recited Shristi Stiti Pralaya Sadhana Shakti Reka Chayela Yasya Bhuvanani Vibharti Durga Ichjanurupam Api Yasya Chacheshtatesa Govindamani Purusham Tamaham Vijam. और श्रील प्रभुपाद ने ब्रह्म संहिता से कह के सुनाया, सृष्टि स्थिति प्रलय साधन शक्ति रेखा छाया वैश्य भुवनानि भवति दुर्गा इच्छान रूप अपि यस्य च चेष्टते सा गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि। Prabhupada said, we are also worshipping Durga. If you would check your cell phones, please, sabhi mobile band kijiye. मोबाइल बंद कीजिए, सबसे प्रार्थना करते हैं। So Prabhupada said, we're also worshipping Durga. श्रील प्रभुपाद ने कहा हम भी दुर्गा देवी की पूजा करते हैं, He said, but not like the materialists, किंतु भौतिकतावादी व्यक्ति की तरह नहीं।
what is it? Dhanam Dehi, this Dehi, give me this, give me this, give me this, give me this. जो प्रार्थना करता है धनम देहि, ये दो वो दो, ऐसा दो वैसा दो, बस मांगता रहता है, Not like that, उस तरह नहीं. but praying to Krishna that you're very dear to Krishna, you're his servant, you're carrying out his orders. किंतु हम इस प्रकार से प्रार्थना करते हैं कि आप कृष्ण की सेविका हैं और कृष्ण के आदेशों की पूर्ति करती हैं. So please give us your blessing so that we can always be engaged in the service of Krishna. तो हमें अपनी कृपा प्रदान करें ताकि हम कृष्ण की सेवा में संलग्न रहें. He said the gopis were also worshipping Durga, उन्होंने कहा गोपियां भी दुर्गा देवी से प्रार्थना किया करती थी, Katyayani, कात्यायनी महामाया. that praying in that same way, that you're very dear to Krishna. So please give us your blessings so that we can have Krishna as our husband. तो वे कात्यायनी माँ से प्रार्थना करती थी कि आप हमें अपनी कृपा प्रदान करें ताकि हमें कृष्ण अपने पति के रूप में प्राप्त हो सके. So Srila Prabhupada was always smashing the demigod worshippers. यद्यपि श्रील प्रभुपाद हमेशा देव पूजा की भर्त्सना किया करते थे. Kamaistaistar Hrita Gyana Prapadyante Nyudevata. That anyone who's worshipping the demigods is bereft of intelligence. काम स्थिर ज्ञान प्रपद्यन्ते न देवता, जो भी देवी देवताओं की पूजा करता है वो अल्प बुद्धि वाला व्यक्ति है. But that means worshipping the demigods separately. इसका अर्थ है अलग से देवताओं की पूजा करना. But this is bona fide. We can pray to Durga Devi or any demigod. किंतु ये प्रामाणिक है, हम दुर्गा देवी या किसी भी देवी देवता से इस प्रकार से प्रार्थना कर सकते हैं. Please let me be engaged in the service of Krishna. कृपा करके मुझे कृष्ण की सेवा में संलग्न कीजिए. Now that's about as much time as. That's good, right? All right. Thank you all very much. बहुत Hare बहुत Krishna. धन्यवाद. हरे कृष्ण. Srila Prabhupada ki Jai. jai, Samaveta Bhakta Vrinda ki jai, Gaur Premanande. Hari Hari. His Holiness Jayadvat Swami Maharaj ki jai. Ghosh Prabhu. His Holiness Bhakti Daita Adipurush Swami Maharaj joined ISKCON way back in 1978. तो हम अब भक्ति दया तो आदि पुरुष महाराज से प्रार्थना करते हैं कि वे अपना वक्तव्य रखें. महाराज 1978 में इस्कॉन के संपर्क में आए थे. And he received initiation from His Holiness 1988 1988 में ये इस्कॉन के संपर्क में आए थे and received initiation from His Holiness Gaur Govind Swami Maharaj. और उन्हें गौर गोविंद स्वामी महाराज से उन्होंने दीक्षा प्राप्त की. And after serving 22 years as in Pujari department, he received sannyas in 2018. और कई वर्षों तक पुजारी विभाग में सेवा करने के पश्चात 2018 में उन्हें संन्यास प्राप्त हुआ. So we request Maharaj to please speak about Prabhupada Katha. And So after Maharaj this, we will have a long session by His Grace Vasu Ghosh Prabhu. तो हम प्रार्थना करेंगे महाराज से अपना वक्तव्य रखें और इसके बाद वासु घोष प्रभु अपनी प्रस्तुति देंगे. ॐ अज्ञानतिवृन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनीति नामिने. नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. नमो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम
हरे राम 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 हरे हरे। Hare Krishna. I don't have much practice to speak in English. अंग्रेजी में अधिक बोलने का मेरा अभ्यास नहीं है। My service is to preach almost in Odia, Bengali and Hindi. मेरी सेवा है उड़िया, बंगला और हिंदी भाषा में प्रचार करना। I came from Bhubaneswar. मैं भुवनेश्वर से आया हूँ I am the disciple of His Holiness Gaur Govind Singh Maharaj. और मैं गौर गोविंद स्वामी महाराज का शिष्य हूँ। My sannyasi guru is His Holiness Bhakticharya Swami Maharaj. और मेरे संन्यास गुरु हैं श्री श्रीमद भक्ति चारू स्वामी महाराज। हरि बोल। Just reading what I could put together for the pleasure of Srila Prabhupada, the assembly Vaishnavas and Vaishnavis. तो मैं अपने लिखे हुए वक्तव्य में से कुछ पढ़ूंगा श्रील प्रभुपाद एवं उपस्थित वैष्णवों की संतुष्टि के लिए। Okay? ठीक है, Thank you. बहुत बहुत धन्यवाद। Lord Krishna has given us the Srimad Bhagavad Gita, which is the essence of all Vedic literature's instructions. भगवान कृष्ण ने भगवत गीता हमें प्रदान की है जो कि सभी वैदिक वाङ्मयों का सारातिसार है। One who accepts only Srimad Bhagavad Gita and follows Lord Krishna's transcendental instructions, he can very easily attain liberation by the mercy of the Lord. जो भगवत गीता के निर्देशों को स्वीकार करेगा उसे भगवान की कृपा से बहुत ही सहजता से मुक्ति प्राप्त होगी। And Sridhar Swami said, Haring vinana mritum taranti. श्रीधर स्वामी ने कहा है हरिम विना मृत्युम तरंती। Without Lord Krishna's mercy, no one can overcome the danger of death. भगवान कृष्ण की कृपा के बिना कोई भी मृत्यु को पार नहीं कर सकता। So everybody should take the shelter of Lord Krishna. तो हर किसी को भगवान कृष्ण की शरण लेनी चाहिए। Since Krishna's one of the innumerable names is Mukunda, कृष्ण के कई नामों में से एक नाम है मुकुंद, which means the one of who can give liberation from material existence. जिसका एक अर्थ है वे ही एकमात्र हैं जो भौतिक अस्तित्व से हमें मुक्ति प्रदान कर सकते हैं। For he is the supreme personality of Godhead. क्योंकि ये पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं। He is the only shelter of everyone. ये सभी के एकमात्र आश्रय हैं। When Arjuna heard these 4 verses from the lotus lips of the supreme personality of Godhead, जब अर्जुन ने भगवान के मुखारविंद से इन 4 श्लोकों को सुना, Bhagavad Gita 10th chapter 8 to 11. भगवत गीता 10th अध्याय 8 से 11 नंबर श्लोक। Text 8. I am the source of all spiritual and material worlds. 8वां श्लोक, मैं सभी जड़ और आध्यात्मिक जगतों का मूल स्रोत हूँ। Everything emanates from me. सब कुछ मुझसे ही उद्भूत हुआ है। The wise who perfectly know this engage in my devotion service जो बुद्धिमान हैं और मेरी सेवा में संलग्न होते हैं and worship me with all their hearts. और अपने हृदय से मेरी पूजा करते हैं। Text 9. 9वां श्लोक, The thoughts of my pure devotees dwell in me. मेरे शुद्ध भक्तों के विचार मेरे मन में बैठे रहते Their हैं। lives are fully devoted to my service. उनका पूरा जीवन मेरी सेवा में संलिप्त रहता है And they derive great satisfaction and bliss from always enlightening one another and conversing about me. और वे एक दूसरे को मेरे बारे में बता के संतुष्ट होते हैं। Text 10. 10वां श्लोक, To those who are constantly devoted to service me with love, I give the understanding by which they can come to me. जो निरंतर मेरी सेवा में लगे रहते हैं, मुझे स्मरण करते हैं, मैं उन्हें वो बुद्धि देता हूँ जिससे वे मेरे पास आ सकें। Text 11. 11वां श्लोक, To show them special mercy, तो उन्हें I dwelling in their hearts, destroy with the shining lamp of knowledge the darkness born of ignorance. उन्हें ज्ञान प्रदान करने के लिए मैं उनके हृदयों में प्रदीप को जलाता हूँ जिससे अज्ञान के अंधकार को दूर किया जा सके। Lord Krishna could understand who is Krishna. He recited this verse, Param Brahma Param Dham Pavitram Paramam Bhavam
Purushang Shashwatam Divyam Adi Devang Adim Vibhum Adi Devang Ajam Vibhum. अर्जुन समझ सकते थे कि ये कौन है, आदि देवम अजम विभूम। So according to Arjuna's understanding, one must preach about Krishna all over the world. तो अर्जुन के अनुसार हमें कृष्ण के बारे में पूरी दुनिया में प्रचार करना चाहिए, So that every human being can take shelter of Krishna and attain liberation from material existence. ताकि हर कोई कृष्ण की शरण ले सके और भौतिक अस्तित्व से मुक्त हो सके। This is the inner mood of Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur. यही श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की अंतरंगतम इच्छा है। Srila Prabhupada could understand this inner mood of his Guru Maharaj. श्रील प्रभुपाद अपने गुरु महाराज के इस आंतरिक मनोभाव को समझ सके, Therefore, he wrote an English poem, My Lord and Master, His Divine Grace. इसीलिए उन्होंने अंग्रेजी में कविता की रचना की। On the 62nd Vyasa Puja of Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur, celebrated in Bombay, Srila Prabhupada recited this English poem in the presence of his Guru Maharaj. तो अपने गुरु महाराज की उपस्थिति में उनकी 62वीं वर्षगांठ के अवसर पर अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी ने इन वक्तव्यों को उनके गुरुदेव के सामने रखा। Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur was very pleased with this composition, and the end of the Vyasa Puja ceremony, Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur called all good disciples and told them, just see how Abhay could understand my inner mood. व्यास पूजा के पश्चात भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने अपने सभी शिष्यों को एकत्रित किया और उनसे कहा, देखो अभय मेरे मनोभाव को कैसे समझ गया। As expressed in his English poem, और अपनी अंग्रेजी पुस्तक में, अंग्रेजी कविता में उन्होंने लिखा। then Srila Bhakti Saraswati Thakur re-recited one of the 8 composed stanzas. उसके बाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने उसमें से एक पद्य कह सुनाया। Absolute sentient thou hast proved, impersonal calamity thou hast moved. This gives us a life, a new and fresh. Worship thy feet, your divine grace. Okay. Thus, Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur became very pleased upon Abhay Charana Prabhu. इस प्रकार से भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर अभय चरण प्रभु से बड़े प्रसन्न हो गए। In this way, Srila Prabhupada, having received his Gurudeva's mercy, इस प्रकार से श्रील प्रभुपाद को अपने गुरु की कृपा प्राप्त हुई। broadcasted the message of Lord Chaitanya all over the world. उन्होंने चैतन्य महाप्रभु की वाणी का सारी दुनिया में प्रचार किया। As a result, through ISKCON, Lord Chaitanya's message, philosophy, teachings called the Prema Dharma is spreading all over the world. और इसी के चलते कृष्ण प्रेम का यह धर्म सारी दुनिया में प्रचारित हो रहा है। Hundreds and thousands of race people are taking shelter of Lord Krishna and making their lives successful. सैकड़ों हजारों लोग भगवान कृष्ण की शरण ग्रहण करके अपने जीवन को सफल बना रहे हैं। It was predicted by Srila Lochandas Thakur about 500 years ago. लोचनदास ठाकुर ने आज से 500 वर्ष पहले ये भविष्यवाणी की थी। যদি কোনো পাপী ধর্ম ছাড়ি দূর দেশে যায়, আমার সেনাপতি ভক্ত যাইবে তথা। Those papis who are ignorant of Lord Chaitanya's Sankirtan movement and live in far away countries, one commander-in-chief of Lord Chaitanya would go there to deliver them through Lord Chaitanya's Sankirtan movement. चैतन्य महाप्रभु के संकीर्तन आंदोलन के माध्यम से उनके एक सेनापति भक्त ऐसे सभी पापियों को कृपा करेंगे। And who is that Lord Chaitanya's commander-in-chief? और चैतन्य महाप्रभु के सेनापति भक्त कौन हैं? In reply of this, one can very easily understand that who else other than Srila Prabhupada. और हम समझ सकते हैं कि श्रील प्रभुपाद के अतिरिक्त ऐसा कौन हो सकता है। Srila Prabhupada established over 108 temples around the world. श्रील प्रभुपाद ने पूरी दुनिया में 108 मंदिरों की स्थापना की। And our Bhubaneswar Sri Krishna Balaram temple is the last of those temples. और हमारे भुवनेश्वर में श्री कृष्ण मंदिर, श्री कृष्ण बलराम मंदिर उन मंदिरों की सूची में सबसे अंतिम है। And Srila Prabhupada's most significant contribution are his books. श्रील प्रभुपाद की सबसे अनूठा योगदान है उनकी पुस्तकें।
His writings have been translated into over 70 languages. उनके पुस्तकों का 70 से अधिक भाषाओं में अनुवाद किया जा चुका है। He wrote 51 volumes of his with translation, especially Bhagavad Gita and Srimad Bhagavatam, so that anyone could have advantage of this knowledge. अपने ज्ञान से सभी को लाभान्वित करने के लिए उन्होंने भगवत गीता और भागवतम के ऊपर अपनी टिप्पणियों का संकलन किया। After preaching all over the world, Srila Prabhupada, when he had made Lord Jagannath famous all over the world, arrived with his disciple to Sri Jagannath Puri. पूरी दुनिया में जगन्नाथ भगवान का प्रचार करने के पश्चात श्रील प्रभुपाद अपने भक्तों को, शिष्यों को लेकर जगन्नाथपुरी आते हैं। But much to his dismay, the Pandas of the Puri temple forbade his Western disciples to enter. किंतु खेद की बात है, जगन्नाथपुरी के पांडवों ने उन्हें जगन्नाथ मंदिर में प्रवेश करने से मना कर दिया। Just then, Srila Prabhupada thought, I preached the Lord's glories all over the world and collected devotees from him, but he had his Pandas kept them from seeing their deities. मैंने जगन्नाथ भगवान की महिमा का प्रचार पूरी दुनिया में किया है, किंतु इनके पंडित मेरे शिष्यों को उनके दर्शन से वंचित कर रहे हैं। Srila Prabhupada resolved that he would never return to the land of Odisha ever. श्रील प्रभुपाद ने सौगंध ली कि मैं कभी भी उड़ीसा की भूमि पर लौट के नहीं आऊंगा। But Jagannath was not going to let him up that easy. किंतु जगन्नाथ उन्हें इतनी आसानी से छोड़ने वाले नहीं थे। So, just to break this pride of his dear commander-in-chief, his lordship appointed his holiness Gaur Govinda Swami Maharaj. तो अपने शिष्य के घमंड को, अपने भक्त के घमंड को तोड़ने के लिए उन्होंने गौर गोविंद महाराज को चुना, who secured the land for the pleasure of his divine grace. जिन्होंने कृष्ण कृपा मूर्ति के संतुष्टि के लिए भुवनेश्वर में एक जमीन प्राप्त की। Srila Prabhupada, being pleased with the efforts of his humble, dedicated and expert disciple, instructed my Gurudeva to get the place ready and get the construction going for Sri Krishna Balaram temple. अपने शिष्य से प्रसन्न होकर प्रभुपाद ने मेरे गुरु महाराज को निर्देश दिया कि उस भूमि को तुरंत प्राप्त करें और श्री कृष्ण बलराम मंदिर का निर्माण वहां पे शीघ्रातिशीघ्र शुरू करें। Gaur Govinda Swami Gurudeva was instructed that Krishna Balaram and Gaur Nita have to be sculpted by an Odia sculptor, and that Jagannath need not to be carved, for they or shall come on their own. और श्रील प्रभुपाद ने कहा था कृष्ण बलराम और गौर निताई के विग्रह एक उड़िया भक्त के द्वारा बनाए जाएं और जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी के विग्रह को बनाने की आवश्यकता नहीं है, वे अपने आप ही चले आएंगे। Gurudeva did so, living in a tent in an austere position and overseeing the construction of the temple and guest house single-handedly. गुरुदेव ने ऐसा ही किया, बड़े ही तपस्या के साथ उन्होंने वहां पे समय व्यतीत किया और मंदिर और गेस्ट हाउस का निर्माण करवाया। Srila Prabhupada had said, this shall be one of the best ISKCON temples in the world. श्रील प्रभुपाद ने कहा था ये इस्कॉन के सबसे बड़े मंदिरों में से एक होगा। And that I'll build a temple like Jagannath temple, because Jagannath will come. The Western devotees are not allowed there. और फिर मैं जगन्नाथ के एक मंदिर का निर्माण करूंगा, क्योंकि मेरे जगन्नाथ के पश्चिमी भक्तों को वहां जाने की अनुमति नहीं है। In February 1977, the year of Srila Prabhupada's physical disappearance pastimes, Srila Prabhupada came to stay in Bhubaneswar to lay the corner foundation stone of the new temple. फरवरी 1977 में अपने प्रकट लीला के अंतिम वर्ष में श्रील प्रभुपाद कृष्ण बलराम मंदिर की नींव का पत्थर रखने के लिए भुवनेश्वर में आए थे। At his own insistence, Srila Prabhupada refused to stay in a government guest house and spent 17 days in the mud hut personally built for him by Srila
Gaur Govinda Swami on the newly donated land in Bhubaneswar. यद्यपि सरकारी गेस्ट हाउस में उनके रहने की व्यवस्था की गई थी, किंतु वहां नहीं रह के नई भूमि पे एक छोटी सी झोपड़ी में श्रील प्रभुपाद ने 17 दिनों तक रहना स्वीकार किया। It was an out of the way place during that time with no facility except electricity brought to the heart just for Srila Prabhupada dictaphone machine. उस समय उस स्थान पे बिजली की भी कोई व्यवस्था नहीं दी थी, इसलिए वहां पे अलग से व्यवस्था बनाई गई ताकि श्रील प्रभुपाद की डिक्टाफोन मशीन काम कर सके। His divine grace finished the translation and commentary on the 9th canto of the Srimad Bhagavatam and started the 10th. कृष्ण कृपा श्री मूर्ति ने वहां पे 9वें स्कंद का अनुवाद शुरू किया, उसे समाप्त किया और फिर 10वें स्कंद की शुरुआत भी वहीं से की। Further instructing His Holiness Gaur Govinda Swami Maharaj regarding construction of the temple and translation of all his books into the Odia language. और उन्होंने श्रील गौर गोविंद महाराज को मंदिर के निर्माण और अपनी सारी पुस्तकों का उड़िया भाषा में अनुवाद करने के लिए भी निर्देश दिए। This is the glory of Srila Prabhupada that I bring for the pleasure of all your ears from the land of Sri Jagannath Puri. तो जगन्नाथपुरी धाम से मैं आप सभी की संतुष्टि के लिए श्रील प्रभुपाद की महिमा को कह सुना रहा हूँ। Where among countless others devotees, I too don't the shelter of our dearmost commander. प्रभुपाद के सभी केंद्रों में से मैं उनके एक बहुत महत्वपूर्ण केंद्र से आ रहा हूँ। Bhubaneswar ISKCON temple is located in the heart of the city and is home to the deities of Lord Krishna, Balaram, Jagannath, Baladev, Subhadra, Gaur Nita and Radha Gopinath. भुवनेश्वर का इस्कॉन मंदिर भुवनेश्वर के हृदय में स्थित है। वहाँ पे गौर निताई, जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा महारानी, कृष्ण बलराम और राधा गोपीनाथ जी के विग्रह मौजूद हैं। People from various places, especially devotees, come here to visit the temple. दुनिया के अलग अलग हिस्सों से लोग यहाँ पे दर्शन करने के लिए आते हैं। Sri Krishna Balaram temple was inaugurated in 1991 on the auspicious day of Lord Nityananda's appearance after 16 years of struggle. नित्यानंद प्रभु के आविर्भाव तिथि के उपलक्ष्य पे 1991 में भुवनेश्वर मंदिर की स्थापना की गई। This was Srila Prabhupada's last founded project. श्रील प्रभुपाद के द्वारा शुरू किया गया यह अंतिम प्रकल्प था। Over the years, this temple has grown into a flourishing project which attracts thousands of visitors every year. आने वाले सालों में ये प्रोजेक्ट इतना प्रसिद्ध हुआ कि रोज यहाँ पे हजारों की तादाद में लोग दर्शन करने के हेतु आते हैं। Previously, when the temple was built, it was in a remote area with wild animals and dacoits. जब इस मंदिर का निर्माण शुरू हुआ था तो यहाँ पे बहुत बड़े दस्यु हुआ करते थे, जंगली जानवर भी आया करते थे। Where people feared to come. लोग बहुत भयभीत होते थे, इसलिए यहाँ नहीं आते थे। But Srila Prabhupada once predicted that it will be the center of the city, and now it is really at the center of the city. श्रील प्रभुपाद ने भविष्यवाणी की थी कि आने वाले समय में यह शहर के केंद्र में होगा और आज ये भविष्यवाणी सत्य साबित हुई है। Sri Krishna Balaram Mandir of ISKCON is the most popular temple in Bhubaneswar. भुवनेश्वर के सबसे प्रसिद्ध केंद्रों में से एक है इस्कॉन भुवनेश्वर कृष्ण बलराम मंदिर। Although Swami Vivekananda's speech in Chicago was very famous and he managed to make one female disciple whom he brought to India. यद्यपि स्वामी विवेकानंद का एक वक्तव्य शिकागो में बहुत प्रसिद्ध हुआ जिसके चलते वे एक महिला शिष्य को भारत ला सके। But our Srila Prabhupada, the expert preacher of Lord Chaitanya Mahaprabhu's message, brought so many Niveditas who were sad is glorying of Vedic culture. किंतु हमारे श्रील प्रभुपाद के प्रचार से हजारों लाखों निवेदिताएं भारत आ चुकी हैं और वैदिक संस्कृति को अंगीकार कर चुकी हैं। All this because Srimati Bhakti Devi chose to travel to the western countries
sitting within the heart of Srila Prabhupada. ये सब इसलिए संभव हो सका क्योंकि श्रीमती भक्ति देवी श्रील प्रभुपाद के हृदय में बैठ के पाश्चात्य देशों की यात्रा पे जा चुकी थी। जय Srila Prabhupada की जय जय Srila गुरुदेव की जय जय श्यामद भक्त वृंद की जय निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। I just want to say a few lines for Prabhuji. कई भाषाओं पे आपका अधिकार, सनातन धर्म से आपको है बहुत प्यार, गुजरात में किया अद्भुत प्रचार, श्रील प्रभुपाद में आपकी श्रद्धा है अपार, इस्कॉन उज्जैन से आपको है विशेष प्यार, आपके मार्गदर्शन की हमें है दरकार, हमारे निमंत्रण को आपने किया स्वीकार, इसके लिए व्यक्त करते हैं आपका आभार। So I am giving the short introduction because we have less time. So very thankful to His Grace Vasudev Prabhu and request him to please enlighten us about his dear spiritual master Srila Prabhupada. Thank you. तत्संयोरावृणीमहे गातुं यज्ञाय गातुं यज्ञपतये दैवी स्वस्तिरस्तु नः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वं जिगातु भेषजं शन्नो अस्तु द्विपदे शंखचतुष्पदे ओम शांति 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 हरिः ओम शं नो मित्रः शं वरुणः शं नो भवद्वर्यमा शं नो इन्द्रो बृहस्पतिः शं नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मावतु तन्वक्तारम् अवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् ओम शांति 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 हरिः ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ओम शांति 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 हरिः ओम ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्रह्मणहिताय च जगद्हिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। संस्कृत भाषायां प्रवचनं दातुम् इच्छामि किन्तु प्रायः
सर्वे जनाः श्रवण संस्कृत श्रवण अभ्यासः नास्ति तदर्थं हिंदी भाषायां किंचित वदिष्यामि। आप सब आया ये कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। प्रभुपाद जी महाराज का स्मरण महोत्सव, भक्ति चारू जी महाराज अद्भुत प्रवृत्ति, उन्हीं के इच्छा से ये अद्भुत प्रांगण का निर्माण हो चुके हैं और भी उन्नति होने वाले हैं निकट भविष्य में। और मैं क्या बोल सकता हूँ, जब प्रभुपाद जी महाराज के अंतिम दिन वृंदावन में चलते थे तो हम लोग कोई अभागी लोग थे जो जा नहीं पाया। हैदराबाद में मैं नया मंदिर के सेवा में लगे हुए थे। भक्ति चारू महाराज प्रभुपाद के अंतिम दिनों में सेवा किया। व्यक्तिगत जो पहले श्रुति कीर्ति प्रभु करते थे, बाद में हरिशौरी प्रभु, अंत में भक्ति चारू महाराज ने किया। और जैसे अपना उदयानंद प्रभु ने बतलाया कि बहुत सारे भक्त लोग दुनिया भर आके अपना अपना प्रभुपाद की इच्छा के अनुसार कुछ न कुछ प्रभुपाद जी महाराज के अंतिम दिनों में सेवा किया। हम लोगों का भाग्य नहीं था लेकिन उसके पहले मैंने प्रभुपाद जी महाराज बॉम्बे, मायापुर, वृंदावन, फिर बॉम्बे, फिर हैदराबाद, तिरुपति बालाजी, बाद में हैदराबाद वृंदावन मंदिर के उद्घाटन रामनवमी के दिन में 1975, कितना 47 साल हो गया, 47। फिर उसके पश्चात मायापुर में प्रभुपाद का दर्शन किया। चेन्नई, जो उसी काल में मद्रास बोलते थे, और नेल्लूर, और हैदराबाद 76 में 2 बार आया प्रभुपाद। मंदिर के उद्घाटन कृष्ण जन्माष्टमी 1974 और 1974 के अंत में हैदराबाद 2 हफ्ते रहा। उसके पश्चात मैंने प्रभुपाद महाराज को मायापुर में देखा, 77 में भुवनेश्वर का कार्यक्रम के पश्चात। कुंभ मेला में भी नहीं गया मैं। प्रभुपाद जी महाराज 1977 के कुंभ मेला, उसके पश्चात भुवनेश्वर, फिर मायापुर। और मायापुर में मैं प्रभुपाद के साथ 1 घंटा बैठा था एकांत, क्योंकि उनके छोटे गुरु भाई भक्ति भाई बाबूरी महाराज राजमंड्री से बाय रोड गाड़ी में बिताकर बड़ी लंबी यात्रा करके मायापुर पहुंचा। उसके बाद प्रभुपाद को बॉम्बे में तमाल कृष्ण महाराज दरवाजा खोल दिया और प्रभुपाद महाराज के शरीर बहुत कट गया, और वो अंतिम दर्शन था मेरा। वृंदावन मैं दिल्ली गया, प्रभुपाद लंदन जाकर आया बॉम्बे, और दिल्ली से वापस लौट आया हैदराबाद, प्रभुपाद वृंदावन पहुंचा। तब संक्षिप्त में प्रभुपाद कहाँ कहाँ देखा, कहाँ कहाँ मिला। गोविंदम आदि पुरुषम तम अहम भजामि, प्रभुपाद बोल रहे थे। श्रुति कीर्ति प्रभु याद किया, उनके श्रुति कीर्ति प्रभु ने याद किया ना। तो जब हम तिरुपति बालाजी के सामने प्रभुपाद जी महाराज के साथ
1974 अप्रैल, कितना साल हो गया, 48 साढ़े 48 होने आ गया। मैं छोटा बच्चा था, 19 वर्ष पूरा 20 चालू, और दर्शन के पंक्ति बंद करके हम लोगों को भेजा। प्रभुपाद साष्टांग दंडवत किया बालाजी के सामने। भगवान बालाजी देखना इतना आसान नहीं है, इतना नजदीक जाना आजकल लोगों को दूर से भेज देते हैं। कोई कोई विशेष लोग आगे, कभी कभी सबको आगे भेजते हैं। गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। आपने सुना है प्रभुपाद जी का प्रतिकृति, क्या बोलते हैं, ध्वनि यंत्र के प्रतिकृति। तो प्रभुपाद ने हम लोगों को बोला, बालाजी का अर्थ है बाल कृष्ण, बालाजी का अर्थ है बाल कृष्ण। प्रभुपाद हर प्रकार के लोगों को संबोधन करते थे। आप पढ़ लिया होगा, मैं भी पढ़ चुका हूं क्योंकि मैं उपस्थित नहीं था। लेकिन कभी कभी प्रभुपाद को देश काल और पात्र के अनुसार बोलना पड़ता था। जब ईसाई लोगों के निकट जाते थे तो प्रभुपाद बोलते थे, यीशु प्रभु हमारे गुरुजी है। लेकिन याद रखिए, स्मरण कीजिए कि प्रभुपाद एक दिन बाइबल से प्रवचन नहीं दिया, कभी नहीं। और जब प्रभुपाद दृष्टांत देते थे, भगवत गीता, श्रीमद् भागवत इत्यादि वैदिक ग्रंथों से दृष्टांत देते थे। वैदिक संस्कृति का पुनरुत्थान भारत में और विदेश में स्थापना के लिए उन्हीं के लक्ष्य थे। ऐसा नहीं कि ईसाई धर्म का प्रचार करते थे, बिल्कुल नहीं। सनातन धर्म का प्रचार, विदेशी लोगों को धोती पहनाया, तिलक लगाया, साड़ी पहनाया, भारतीय संस्कृति का प्रचार आंदोलन। प्रभुपाद के काल में बहुत लोग आते जाते रहते थे इस कान से। मेरा याद है, जब मैं 1 साल वहाँ रहा, भारत चले आने के पहले, और बहुत लोग भक्त बन जाता था, खुद सेवा करते थे और बाद में चले जाते थे। उदयानंद प्रभु एक भक्तों का, उदयानंद प्रभु को याद किया कि श्रुत कीर्ति, जो पेरिस में, कौन पेरिस का दृष्टांत, हाँ कृष्ण चैतन्य महाराज, धन्यवाद। वो बहुत अच्छा कथावाचक है, हाँ बहुत जबरदस्त है। हमने उनको वहां देखा, खरगोन मंदिर के उद्घाटन में अद्भुत प्रवचन दिया, और आज भी बहुत अच्छा वक्ता है अंग्रेजी में, कथावाचक। ये कथा उन्होंने कहा कि एक निम्न के निम्न, क्या या इस देश में भिखारी जो रास्ते में स्नान के बिना जी रहे हैं, ऐसे ही बड़ा प्रचारक बन गया, ऐसे पुरुष प्रभुपाद जी का दया के द्वारा। राइट, नहीं उसके पहले मैं क्या, हाँ राइट। बहुत सारे लोग भक्त बन गए, वो भक्त रहा वर्षों वर्षों तक, लेकिन काफी लोग चले जाते थे। बड़ी बड़ी हस्ती भी, जब मैं भक्त बन गया, प्रभुपाद का एक, प्रभुपाद ने ये भक्ति वेदांत पुस्तक न्यास BBT
2 ट्रस्टी बनाया, अधिकारी बनाया। तो मैं नया भक्त था और उनमें से एक इस्कॉन छोड़ दिया। और प्रभुपाद एक शब्द का निर्माण किया अंग्रेजी में, ब्लूप। आपने यही सुना है? कितने लोग ये सुन लिया? अच्छा, काफी लोग ने यही नहीं सुना। तो यही शब्द प्रभुपाद ने वर्णन दिया कि जब एक पत्थर तालाब में फेंकेंगे तो जिस ध्वनि होते हैं जब वो पत्थर पानी में प्रवेश करते हैं, उसका ध्वनि यही है, ब्लुप। तो जब कोई कृष्ण भगवान के सेवा प्रवृत्ति छोड़कर भौतिकवाद वापस अपनाते हैं, संस्था का काम छोड़ के चले जाते हैं, और विदेश में मैं आपको क्या कह सकता हूँ, हर प्रकार के तामसिक प्रवृत्ति वापस गिर जाते हैं उसमें, जो हमारे 4 नियमों का उल्लंघन करने वाले प्रवृत्ति। तो प्रभुपाद ने ये वर्णन किया, उसने ब्लूप किया, ब्लूप, भौतिकवादी बन गया, भौतिक ब्लूप। इसीलिए बोलते थे कि भवसागर, और जब कोई डूब जाते हैं भवसागर में तो पत्थर जो तालाब में गिरते हैं वही होते हैं, ब्लूप। श्री कृष्ण चैतन्य महाराज जी अच्छा दृष्टांत दिया, लेकिन दूसरा दृष्टांत भी है काफी। वो जो बहुत बड़ा दायित्व, संस्था का बड़ा झटका लग गया उसी काल में, जब ये भक्त चले गया। मानो या नहीं, वो व्यक्ति अभी भी जी रहे हैं और बुद्ध अनुयायी बनकर रह रहे हैं। कहने का तात्पर्य नहीं है कि सब लोग जो स्पर्श करते हैं इसी संस्था के साथ भगवान के परम भक्त बन जाएगा। क्यों बोल रहे हैं मैं? सत्य कथा, सत्य कथा। हम आया ये कार्यक्रम में उत्साह प्राप्त करने के लिए, लेकिन कटु सत्य भी हमको सामना करना है कभी कभी, है कि नहीं? बहुत भक्त लोग संघर्ष करते हैं। प्रभुपाद जी का कहानी भी ऐसे है। प्रभुपाद जब विदेश गया, उनके पास 40 रुपया था। 40 रुपया, आजकल के 40 रुपया नहीं है, लेकिन तभी भी अगर हम सोचते हैं कि 55 साल पहले 40 रुपया ज्यादा था, लेकिन कितना था? करोड़ों के करोड़ों का नहीं था, लाखों के लाखों का भी नहीं था। और प्रभुपाद 1 साल तक इतना संघर्ष किया। कहानी ऐसे है। भाग्य की बात है कि भोजन और निवास स्थान प्राप्त किया। अच्छा, आप लोग कल्पना कर सकते हैं कितने लोग विदेश गया ठंडी के मौसम में? यहाँ कोई नहीं, एक भी नहीं, 1 2। भयंकर ठंडी है। कितने लोग बद्रीनाथ गया? हाथ दिखाइए। हाँ। तो आप कल्पना करो कि बद्रीनाथ गर्मी के मौसम में काफी ठंड रहते हैं। मैं भी 3 बार जाके आया। उसी मौसम 6 महीने तक चलते हैं विदेश में, 6 महीने तक। कोई स्थान में, कोई स्थान भारत जैसे है। अपने मायामी शब्द, अरे भक्ति चारू महाराज अंत में ऑरलैंडो में जरा सा ठंड पड़ते हैं। मायामी जाओ, 1.5 साल पहले मैं डिलैंड में भी रहा 10-12 दिन, 1.5 साल पहले। सुबह थोड़ा ठंडा होते हैं ठंडी के मौसम में। मायामी जाओ, वहां से 3 घंटे का रास्ता है, डिलैंड से 3-3.5 घंटा, कभी ठंडा नहीं पड़ते। बाकी न्यू वृंदावन जहाँ श्रुति कीर्ति प्रभु रहा,
प्रभुपाद जी ने भी ये कहा कि ये मानव जीवन के योग्य स्थान नहीं है। क्योंकि इतना ठंड, 6 महीने तक ठंड पड़ते हैं वहां। अच्छा, बंगाल कैसे जगह है, पानी पानी ही पानी, कितने लोग रह रहे हैं। बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल सारे कितना 35 करोड़ दोनों साथ में अगर गिनेंगे 35 करोड़ लोग, उतने लोग यूएसए में रह रहे हैं। हाँ, उतने लोग यूएसए में रह रहे हैं क्योंकि भूमि इतना अच्छा भूमि है, इतना सब्जी और फल और अनाज जो जीवन का जरूरत है इतना होते रहते हैं। एनीवे, प्रभुपाद जी संघर्ष किया और उनके जीवन में ही प्रभुपाद दुनिया भर एक सुप्रसिद्ध व्यक्ति बन चुके थे। जो अंग्रेजी भाषा में कहा है अनुवादक भाग्य, मैं अनुवाद करूंगा। आपने खुद के नहीं, मैं आपने खुद के जीवन में ऐतिहासिक पुरुष बन गया। ऐसे लेजेंड इन हिज ओन टाइम, अंग्रेजी में ऐतिहासिक पुरुष जीवन के काल में बन गया प्रभुपाद। अभी 45 साल बीत गया, 45 साल। और प्रभुपाद जी के जीवन काल में कोई कल्पना नहीं कर सकते थे कि मायापुर में इतना अद्भुत मंदिर का निर्माण हो जाएगा। हम प्रभुपाद के प्रेरणा से अम्बरीश प्रभु कर रहे हैं और सभी भक्त मंडल का सहायता, पूरा उन्हीं का पैसा नहीं है, उन्हीं का बड़ा भाग है, लेकिन सब उन्हीं का नहीं है। उसी तरह यहाँ भी अद्भुत बन गया। ये कौन, यही स्थान विशेष स्थान है, ये अवंतीपुर। इस स्थान का इतिहास यशस्वी, बड़ी अद्भुत इतिहास है। और हमारा गौड़ीय संप्रदाय का विचार, गौड़ीय संप्रदाय का सिद्धांत क्यों अद्भुत है? क्योंकि कृष्ण भगवान और बलराम वेदाध्ययन, विद्यार्जन इस स्थान में किया। कृष्ण भगवान यहाँ आके रहा। हम समझते हैं जहां जहां कृष्ण भगवान अपने पांव रखा है था 5000 साल पहले, तो अति पवित्र और अति अद्भुत स्थान हो गया। तो यहां भी बड़ी संघर्ष हो गया सरकार के साथ, और अभी समाधान होते जा रहे हैं। तो ये सब कृष्ण का परीक्षा है। प्रभुपाद जब संन्यास लिया, वृंदावन में रह रहे थे और एक गाय उसको मारा। आपने ये कहानी सुन लिया? और प्रभुपाद ने कहा कि संन्यास आश्रम में जब कोई प्रवेश करते हैं तो भगवान उनका परीक्षा करते हैं। कितना परीक्षा किया भगवान ने प्रभुपाद को? मालूम है, प्रभुपाद ये विदेशी लोगों के लिए भोजन का निर्माण और उसके बाद अपने आप साफ सफाई करना पड़ता था, सब कुछ। आरंभ में इतना संघर्ष किया, हम कल्पना नहीं कर सकते हैं। बाद में ही इतने युवा भगवान ने भेजा। प्रभुपाद ने बोला कि आप लोग भगवान ने भेजा मेरे को मदद करने के लिए, और इस्कॉन का इतना विस्तार हो गया। लेकिन अभी भी हम छोटा है कि नहीं? अगर यहाँ 200, 200, 400 बैठा है, लेकिन इसी नगर में ही लाखों के भारतीय अपना संस्कृति खो दिया, छोड़ दिया। पाश्चात्य संस्कृति इतना प्रबल है, हम लोग उसमें से बचना आसान नहीं है, और हमारा काम है बचाना है। अच्छा, मालूम नहीं कितना समय बीत गया, हो गया।
समय सीमित है, काल रोकते नहीं है, और सबका सबसे महिमापूर्ण प्रवृत्ति प्रसाद ग्रहण। प्रभुपाद गुलाब जामुन ने कहा ये इस्कान के गोली है, मारो, असुर भावना को मारकर भक्त बनाएंगे। गुलाब जामुन बात हो। उदयानंद प्रभु और मैं तो अदीक्षित था और वो दीक्षित था। जगन्नाथ रथ यात्रा महोत्सव 1973, तो ये 49 साल पहले, 49 पूरा हो गया, 50 चालू। एक प्रकार के लड्डू बांट रहा था, जो प्रभुपाद ने बोला अद्भुत प्रसाद, सिंपली वंडरफुल। हिंदी में क्या बोलते हैं? अद्भुत वंडरफुल है, और सरल रूप में अद्भुत है, सरल रूप में अद्भुत है। बांट रहा था, खा रहा था। और इस प्रकार से बहुत सारे विदेशी लोग भक्त बन गए। अभी क्यों नहीं बन रहे हैं? तो मैं, टाइम समाप्त हो गया, तो मैं जवाब नहीं दे सकता हूं। मुझे अंत में विदेशी संस्कृति से सावधान रहना, क्योंकि हमारे संस्था में प्रवेश कर रहे हैं। हरे कृष्ण। भक्ति चारू महाराज भारतीय संस्कृति और संस्कारी पुरुष का प्रतीक था इस्कान में। वर्षों वर्षों तक उनका व्यवहार से, उनके ये प्रसाद सेवा सब उसके लिए बहुत सुप्रसिद्ध हो गया। इसलिए इन्होंने इतना अद्भुत निर्माण कर पाया, और उन्होंने मायापुर का निर्माण के लिए काफ़ी मदद किया। तो ये वैदिक संस्कृति हमको छोड़ना नहीं चाहिए। ये अंतिम कथन है आज। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय, भक्ति चारू महाराज की जय। His Grace Vasu Ghosh Prabhu ki. Request devotees to please wait. There are a few announcements. So we are very grateful to His Grace Vasu Ghosh Prabhu. And as Prabhuji mentioned about His Holiness Bhakti Charu Swami Guru Maharaj, Prabhuji is a very, very dear friend of Guru Maharaj. And we all have observed it during Srila Prabhupada Memorial Festival and Vyas Puja of His Holiness Bhakti Charu Swami Guru Maharaj. He always comes here whenever he is in India, or he flies from there to come to India. And also we are very fortunate to have him as Regional Secretary of ISKCON Ujjain. So as he told that this is growing, so it is growing under his able guidance, and we always seek for his guidance. And we thank all the devotees for their wonderful Prabhupada Katha. This was only a glimpse. So how do you feel about the glimpse? So we request devotees that now prasadam time, you may get the goli, but that is not sone ki goli. You have to come back.